Health and Disease, and today we are going to start next topic. This is the vaccination and immunization. As we know, we have discussed previously, father of immunology is Edward Jenner. Father of immunology is Edward Jenner. Why was he considered as father of immunology? Why was Edward Jenner considered as father of immunology? Because of vaccination. Vaccination was started by him. So because of vaccination, Edward Jenner known as father of immunology. Vaccination word derived from Latin word vica, that means cow. So he used the term vaccine for cowpox, which is the mild form of smallpox. Okay. So he has created the vaccine for smallpox. Okay. Father of immunology is Edward Jenner. Why he was considered father of immunology? Because of vaccination. Vaccination was started by Edward Jenner. Vaccine word is derived from Latin word vica, that means cow. So he used the term vaccine for cowpox. Vaccine for cowpox, which is a mild form of smallpox. So he has created the vaccine for smallpox. He has seen that when inactive form of smallpox is injected into a normal person, the person becomes immune to this, and later on when infection will occur, the person will not show any kind of symptoms. ओके, जब क्या है किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन या इनएक्टिव फॉर्म में क्या है वैक्सीन है. वैक्सीन किससे बनता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन. ओके, व्हेन द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दैट मींस वैक्सीन ऑफ स्मॉलपॉक्स इंजेक्टेड इनटू अ नॉर्मल पर्सन, दैट टाइम दिस नॉर्मल पर्सन बिकम immune to this, and later on when the infection will occur, that time the pathogen, when the pathogen enter into that person, that time the person will not show any kind of symptom. आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स जब एक बार किसी पर्सन को हो जाता है तो सेकेंड टाइम स्मॉल पॉक्स होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं या होता ही नहीं है, क्योंकि पहली बार जब उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस आया तो उसकी बॉडी ने अपने अंदर उसके अगेंस्ट क्या बना ली? एंटीबॉडीज बना ली. ठीक है, पहली टाइम तो उसके सिम्टम्स शो हुए, लेकिन हमारी बॉडी ने उस टाइम उसके अगेंस्ट क्या बना ली? एंटीबॉडीज बना ली. जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन, वही इन्फेक्शन हमारी बॉडी में दोबारा आया उस पर्सन में, तो क्या हुआ? उसकी बॉडी उस इन्फेक्शन से, उस पैथोजन से फाइट करने में क्या हुई? एबल हुई. तो इसलिए सेकेंड टाइम जो है स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज द क्रिएशन ऑफ वैक्सीन. वैक्सीनेशन मीन्स creation of vaccine. Okay,
and we have discussed that the vaccination was started by Edward Jenner, but the term word vaccine was coined by Louis Pasteur. Vaccine word coined by Louis Pasteur. क्लियर? यस, वैक्सीनेशन के बारे में तो एडवर्ड जेनर ने, उस वैक्सीनेशन को तो एडवर्ड जेनर ने स्टार्ट किया था, लेकिन वैक्सीन वर्ड के बारे में किसने किया था सबसे पहले? लुइस पास्चर। ओके, सो वैक्सीनेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ वैक्सीन। व्हाट आर वैक्सीन? क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर वैक्सीन? Vaccine is a inactive form of pathogen which is injected into a person, into a human being. So, vaccine are inactive form of pathogen. यानी जो पैथोजन किसी डिजीज को कर रहा है उसी पैथोजन की इनएक्टिव फॉर्म जो एक्टिव नहीं है, या फिर वीकेंड फॉर्म और वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन से ही वैक्सीन क्या बनाया जाता है, दैट इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बीइंग। दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। देखो, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, these two terms near about same, but there is minor difference between these. Okay, vaccination means inject vaccine into the human beings, and immunization means after vaccination the body produces antibody against administered vaccine. This is called immunization. किसी पर्सन को वैक्सीन लगाना क्या है? वैक्सीनाइजेशन है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हो रही है जो उस वैक्सीन के अगेंस्ट, वो क्या है? इम्यूनाइजेशन। ओके, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस करेगा, वो डेवलप करेगा एंटीबॉडीज को। सो आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड मीन्स डिलीवर्ड वैक्सीन, जो वैक्सीन उन्हें दिया गया है। अगेंस्ट डिलीवर्ड वैक्सीन और एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ओके, सो वैक्सीनेशन means to inject vaccine into human body. And immunization, after vaccination the body produces antibodies against administered vaccine is called immunization. Okay, now we discuss the principle behind vaccination. Yes, the principle behind vaccination. The principle behind vaccination is when we inject inactive form or the surface antigen of pathogen. Inactive, or we can say that dead form of pathogen. There will be primary immune response and the formation of memory cell occur. Primary immune response and the formation of memory cell occur. क्या होगा कि जब हम किसी पर्सन को कोई वैक्सीन देंगे किसी डिजीज के अगेंस्ट, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगी? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेस होंगे और उसके
उसके अंदर क्या हो जाएगी, मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. दैट मीन्स दे डेवलप द मेमोरी अगेंस्ट that pathogen. Okay, and so when person will encounter the pathogen for second time, अब पैथोजन उसकी बॉडी में जब सेकंड टाइम एंटर होगा तो पैथोजन को क्या होगा, एक्टिव फॉर्म होगी. पहले हमने उसमें डेड फॉर्म दी उसी पैथोजन की. अब वो जो सेकंड टाइम पैथोजन खुद उसमें अटैक कर रहा है पर्सन पे, तो उसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है, लिविंग फॉर्म है. सो देयर विल बी सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स अकर एंड द बॉडी विल एबल टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन. ठीक है, जब हमने किसी डिजीज के अगेंस्ट किसी पर्सन को कोई वैक्सीन दे दिया तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेस होंगे और उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, मेमोरी डेवलप हो जाएगी उस पैथोजन के अगेंस्ट. अब जब सेकंड डे वो पैथोजन खुद उस बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो पहले से जो मेमोरी डेवलप है, अब उस बॉडी को पता है कि इससे ये जो पैथोजन आया है इससे मुझे किस तरह से फाइट करना है. दैट टाइम द बॉडी विल एबल टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन. जैसे अभी कोरोना डिजीज का चल रहा है, कोरोना के लिए वैक्सीनेशन लगाई जा रही है. क्यों लगाई जा रही है, इसीलिए वैक्सीनेशन की फॉर्म में वो हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर रही है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस. ओके, और हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट हमारी अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है और उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, मेमोरी डेवलप कर रही है. ठीक है, जब हमारी वैक्सीनेशन हो गया कोरोना के अगेंस्ट तो हमारी बॉडी ने क्या है, उसके अगेंस्ट मेमोरी डेवलप कर ली है कि अगर ये वायरस आएगा तो मुझे इस तरह से उससे फाइट करना है. अब जब सेकंड टाइम कोरोना वायरस खुद हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी पहले से क्या है, प्रिपेयर है कि मुझे उससे किस तरह से फाइट करना है. दैट टाइम आवर बॉडी विल एबल टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस. क्लियर. तो वैक्सीनेशन लगवाने का यही फायदा है. तो प्लीज स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी आपके घर पे मेंबर्स हैं, जितने भी आप लोग हैं, सभी वायरस कोरोना का वैक्सीनेशन करवाएं. ओके, मैंने भी वैक्सीनेशन करवा लिया. ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स करती है ना. प्राइमरी रेस्पॉन्स किस फॉर्म में शो कर रही है, फीवर हो रहा है, बॉडी के अंदर थकावट फील हो रही है ना, वीकनेस फील होती है एक बार. तो जब वो कोरोना क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस इज इंजेक्टेड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन. ओके, तो इसलिए प्राइमरी रेस्पॉन्स हो गया. अब हमारी बॉडी क्या हो गई है, उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गई है. जब वो कोरोना का वायरस एक्चुअली भी हमारे पास आएगा तो हमारी बॉडी उससे इजीली क्या हो जाएगी, फाइट कर पाएगी, इजिली एबल है फाइट करने के लिए और हमें कोरोना डिजीज नहीं होगी. ठीक है, तो वैक्सीनेशन करवाने का फायदा है, नुकसान नहीं है. सो प्लीज स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करवाओ और कोरोना का जो वैक्सीन है वो सभी लगवाओ. 18+ सभी को लगना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ वैक्सीन. Yes, types of vaccination. There are different types of vaccine. There are different types of vaccine. First generation vaccine, second generation vaccine, and third generation vaccine. First generation vaccine is also called attenuation. That means the vaccines which are formed by inactivation of pathogen. ओके, यानी पैथोजन के वीकेंड फॉर्म से या इनएक्टिव फॉर्म से प्रिपेयर किए जाते हैं और बाय यूजिंग सरफेस एंटीजन ऑफ पैथोजन. एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन इज ओरल पोलियो वैक्सीन. ओके, दे आर लेस इफेक्टिव और सेफ एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन. पहले फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन आए लेकिन ये क्या थे, लेस सेफ थे. तो उसके बाद सेकंड और थर्ड जनरेशन की वैक्सीन आ गई. पहले जो वैक्सीन थे वो कैसे बनाए जाते थे, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वैक्सीन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन. ओके, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन वैक्सीन पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, यानी इन वैक्सीन को बनाने के लिए पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स का यूज किया जाता है. इट क्रिएट विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, जीन्स की हेराफेरी, मैनिपुलेशन ऑफ जीन.
Okay, so about the recombinant DNA technology, genetic engineering, we will discuss in our biotechnology unit. Okay, detailed study of recombinant DNA technology and the genetic engineering we will discuss in our biotechnology unit. Yes, these vaccines activate lymphocyte in the body. Okay, ये हमारी बॉडी के अंदर lymphocytes को एक्टिव करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ दिस vaccine is hepatitis B vaccine that is produced from yeast. yeast से ये बनाया जाता है. Okay, hepatitis B vaccine. Next, third generation vaccines. It is the DNA vaccine. It is formed by using DNA. It is prepared by genetic engineering, which encodes with antigen to destroy the pathogen. Examples of this DNA vaccines are leprosy, malaria, etc. Clear? So these are the types of vaccines. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन आए, उसके बाद सेकंड जनरेशन की, उसके बाद थर्ड जनरेशन की. जो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन थी ये क्या थी, बहुत ज्यादा सेफ और इफेक्टिव है. फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन जो थे ये लेस सेफ थे कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन. I hope you understand the types of vaccine. So today we have discussed about vaccination and immunization. I hope you understand this topic. So students, watch video carefully. Read this topic from your book. Thank you students. Have a nice day.